All the students join the class quick fast. Lecture will be started very soon. Okay, let's start the lecture. I will share the screen now. In previous class, we have to study about the type of pulse modulation techniques. Basically, there are the three types of pulse modulation technique. First one is the PAM, pulse amplitude modulation, pulse width modulation, and pulse position modulation. Today, we will start the first one, pulse modulation technique, that is the PAM, pulse amplitude modulation, that is the modulator form. And this PPT, first one section is cover the circuit diagram of the PAM modulator. PAM modulator in which the two switches G1 and G2. G1 switch is the sampling switch, G2 is the discharge switch, capacitor, and the output is the G dash of T. अब इस वाले सर्किट डायग्राम के रेस्पेक्टिव द आउटपुट वेव फॉर्म इज इन दिस वे. So first one initially started, this one section is the capacitor is charged up to maximum value. Capacitor is charged up to maximum value. Here, the first one is the input is the X1T. Here is the input is this is the input is X1T. Okay, is applied to the two switches G1. First one switch G1 and the second one is the G2. Okay, so first is the sampling switch. Sampling switch is generating the samples. First one is G1 is sampled and the capacitor is charged up to maximum value. The capacitor is charged up to maximum value और कैपेसिटर के अक्रॉस क्या रहेगा, कोई ड्यूरेशन तक क्या रहेगा, ये होल्ड करके रखेगा, ये पर्टिकुलर होल्ड करके रखेगा. आफ्टर दैट द कैपेसिटर इज स्टार्ट टू डिस्चार्जिंग अक्रॉस द G2. ये डिस्चार्जिंग. So first is the charging, after that hold the particular time duration tau, and afterward it will be the discharges. So that's are known as the flat top sample. ये already अपन पढ़ चुके हैं. So basically PAM will generate the flat top samples, pulse amplitude modulator. Okay. Second one is the PAM demodulator. PAM demodulator section को अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? The PAM demodulator section will consisting the first one input is the received signal. Input is received signal is given to the first one section is the holding circuit and the next one is the low pass filter. ये मैं तुम्हें already बता चुका हूँ. The receiver section will always using the low pass filter. Low pass filter के respectively अपन receiver section को डिजाइन करते हैं. So this one next is the circuit diagram के point of view से अपन इसकी स्टडी करें. सर्किट डायग्राम के रेस्पेक्टिव कैसे आएगा? तो फर्स्ट वन इज द सैंपल एंड होल्ड सर्किट. होल्ड सर्किट विल डिजाइन इन दिस वे. होल्ड सर्किट का मीनिंग क्या रहेगा? पर्टिकुलर सैंपल को क्या करेगा, ये होल्ड करके रखेगा, जैसे यहाँ तक होल्ड करके रखेगा, नेक्स्ट इस वाले होल्ड तक रखेगा. ये डॉट डॉट लाइन है, दैट्स आर द होल्ड सर्किट. ये सैंपल सर्किट है, दिस वन इज द सैंपल सर्किट एंड दिस वन इज द होल्ड सर्किट. ओके, होल्ड सर्किट के बाद आफ्टरवर्ड किस पास से पास करा अपन ने? लो पास फिल्टर से पास करा. तो लो पास फिल्टर से पास करेंगे तो ये इस तरह से वेव फॉर्म आ जाएगी, सीधा वेव फॉर्म. सो दिस इज द demodulated signal, demodulated x dash of t. This is the demodulated signal. Okay, so this is the PAM modulator and demodulator. Next one section is the next one part of the pulse modulation technique, that is the PWM, pulse width modulator. तो pulse width modulator basically इसके रेस्पेक्टिव डिजाइन करा हुआ है, इसकी स्टडी करें अपन. पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर. तो पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर को बेसिकली अपन ने कैसे आइडेंटिफाई करा है? बाय यूजिंग द मल्टीप्लेक्सर. बाय यूजिंग द
multiplexer. So multiplier, by using the there are the multi vibrator, bistable multi vibrator, so we can easily generate the PWM waveform. We can easily generate the PWM waveforms. In this circuit, the PWM waveform, in this form, the PWM waveform, this one PWM waveform is generated by using the input signal x of t. यहाँ इनपुट अपन ने क्या अप्लाई करा, x of t सिग्नल अप्लाई करा. ये वाला जो सर्किट डायग्राम है, दैट इज द मल्टी वाइब्रेटर. दिस इज नोन एज द मल्टी वाइब्रेटर, and by using the multi vibrator we can easily design and derive the PWM waveform. इनपुट यहाँ से अप्लाई करेंगे, देर आर द मल्टी वाइब्रेटर के ऑपरेशन को आइडेंटिफाई करें, तो मल्टी वाइब्रेटर एक्चुअली क्या जनरेट करेगा, स्क्वायर वेवफॉर्म. दिस विल बी जनरेटिंग द स्क्वायर वेवफॉर्म. दिस इज द स्क्वायर वेवफॉर्म. ओके, सो पल्स के विड्थ के रेस्पेक्टिव वेरिएशन है. द पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर, दैट मींस द पल्स के विड्थ के रेस्पेक्टिव क्या आएगा इसमें, मॉड्यूलेशन वाला सेक्शन. अब जैसे इस वाले डायग्राम को अपन देखें, इस वाले डायग्राम को देखें यहाँ पे. फर्स्ट ऑफ ऑल एनालॉग सिग्नल लिया अपन ने. फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही अपन ने ये एनालॉग सिग्नल लिया, ठीक है, पल्स वेवफॉर्म ड्रॉ करी अपन ने. पल्स वेवफॉर्म कैसे ली, ये वाली पल्सेस के फॉर्म में. पल्सेस के फॉर्म में अपन ने ड्रॉ कर दिया. नेक्स्ट, एज पर द डेफिनेशन ऑफ द PWM, एज पर द डेफिनेशन ऑफ PWM, ठीक है, PWM की डेफिनेशन के रेस्पेक्टिव देखें, द विड्थ ऑफ द पल्सेस इज चेंज एज अकॉर्डिंग टू द इनपुट सिग्नल. ठीक है, विड्थ क्या होनी चाहिए इनकी, जो पल्सेस की विड्थ है वो कैसे चेंज होनी चाहिए, एज अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. फॉर एग्जांपल, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल width will be increases. Okay, during negative half cycle width will be reduces. तो अब इस वाले सेक्शन को देखो, ये वाले सेक्शन में, इस वाले फर्स्ट ए वाली वेवफॉर्म में, यहाँ विड्थ कम है, फिर विड्थ इंक्रीज हुई, फिर विड्थ कम हुई, फिर विड्थ कम हुआ, मिनिमम हो गई. तो ये वाले जो मैक्सिमम विड्थ है, ये मैक्सिमम विड्थ किसके अकॉर्डिंग है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के रेस्पेक्टिव. मिनिमम विड्थ किसके अकॉर्डिंग है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल के रेस्पेक्टिव. तो ये वेवफॉर्म कौन सी है, PAM वेवफॉर्म, PWM वेवफॉर्म, पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड, दैट इज द पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड. ओके, तो विड्थ में वेरिएशन आ रहा है. विड्थ जैसे ये वाली, एक्चुअली पल्स की अपन विड्थ को कैसे अपन आइडेंटिफाई करते हैं, ये वाली विड्थ, दिस इज द विड्थ, और इसके विड्थ को अपन इंक्रीज कर दें, ये विड्थ इतना इंक्रीज हो गया, दैट इज द पॉजिटिव हाफ साइकिल. अगर विड्थ रिड्यूस हो रही है तो ये नेगेटिव हाफ साइकिल. ये लार्जेस्ट विड्थ का है, ये स्मॉलेस्ट विड्थ का है. ठीक है ना, तो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, दैट मींस द विड्थ ऑफ द पल्सेस इज चेंज एज अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूलेटिंग और इनपुट सिग्नल. पॉजिटिव साइकिल है तो विड्थ इंक्रीज होगी, नेगेटिव हाफ साइकिल है विड्थ रिड्यूस होगी. तो दैट इज द PWM वेवफॉर्म. ओके, नेक्स्ट है PWM डिमॉड्यूलेटर. PWM और डिमॉड्यूलेटर मैंने कैसे डिफाइन करा है, इनपुट क्या आएगा, रिसीव्ड PM सिग्नल. इनपुट में क्या आएगा, PM सिग्नल आएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल किस में देंगे, शिमिक ट्रिगर में. नेक्स्ट रैम्प जनरेटर में. नेक्स्ट सिंक्रोनाइज पल्स जनरेटर में. आफ्टर दैट एडर. नेक्स्ट लेवल शिफ्टर, रेक्टिफायर एंड लो पास फिल्टर. इंपॉर्टेंट, लो पास फिल्टर जरूर कनेक्ट करना है रिसीवर सेक्शन पे. अब इसके रेस्पेक्ट अपन वेवफॉर्म देखें यहाँ पे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेवफॉर्म क्या है, रिसीव्ड PM सिग्नल, ये PM सिग्नल आ गया, ये वाला PM सिग्नल आ गया.
नेक्स्ट क्या दिया है इसमें, शिमिट ट्रिगर, आउटपुट ऑफ द शिमिट ट्रिगर। शिमिट ट्रिगर में क्या होगा, जो नॉइजेज हैं, ये वाला सेक्शन क्या है इसका, नॉइजेज वाला पार्ट, ये वाला जैसे उसका अपर लेवल देखो ना, तो ये क्या है नॉइजेज, तो नॉइजेज को रिमूव करेगा शिमिट ट्रिगर से, तो क्या जनरेट हो जाएंगी, फ्रेश पल्सेस। फ्रेश पल्सेस देखो, ये फ्रेश पल्सेस जनरेट होगी। नेक्स्ट गिवन टू द रैम्प जनरेटर। रैम्प जनरेटर एक्चुअली क्या है, रैम्प की फॉर्म में सिग्नल को जनरेट करेगा, जहां सिग्नल प्रेजेंट है वहां क्या आ जाएगा, ये रैम्प, ये रैम्प आ गया, ये रैम्प सेक्शन, ये रैम्प सेक्शन, दैट इज द रैम्प जनरेटर। सिंक्रोनाइजेशन पल्सेस क्या होगा, जहां पे इस सिग्नल को क्रिएट करा है वहां पे पल्स क्रिएट हो जाएगी, ये जहां रैम्प सिग्नल एंड हुआ है वहां पे सिंक्रोनाइजेशन पल्स अपन क्रिएट कर दी। सिंक्रोनाइजेशन पल्स को क्या कर दिया, इसके साथ एडर कर दिया। नेक्स्ट में क्या करा अपन ने, देखो रैम्प जनरेटर और सिंक्रोनाइजेशन पल्स दोनों को कहाँ कर दिया अपन ने, एडर में। दोनों को ऐड करने पे कौन सी वेवफॉर्म आ जाएगी, ये वाली वेवफॉर्म, दोनों को ऐड करने पे। ये रैम्प जनरेटर था, ये रैम्प जनरेटर था, और इसको किसके साथ ऐड कर दिया, ये सिंक्रोनाइजेशन पल्सेस के साथ। ठीक है। नेक्स्ट लेवल शिफ्टर। लेवल शिफ्टर क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेवल को शिफ्ट कहाँ करा अपन ने, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेवल शिफ्ट हो गया, ये लेवल शिफ्ट हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इसका लेवल जहाँ 0 पे स्टार्ट हो रहा था वो कहाँ पे आ गया, नेगेटिव डायरेक्शन। और नेगेटिव डायरेक्शन के बाद क्या गया है, आउटपुट ऑफ लेवल शिफ्टर के बाद क्या गया, ये कहाँ शिफ्ट करा अपन, नेक्स्ट सेक्शन कौन सा है लेवल शिफ्टर का, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या कर दिया अपन ने, नेगेटिव सेक्शन को क्या कर दिया, रेक्टिफाई कर दिया। नेगेटिव सेक्शन इज द रेक्टिफायर, तो आउटपुट में क्या गया, ऊपर वाला सेक्शन, ये पल्स आ जाएगी, पॉजिटिव वाला सेक्शन, ये पॉजिटिव सेक्शन, ये पॉजिटिव सेक्शन, ये नेक्स्ट पॉजिटिव सेक्शन। और ये एक्चुअली क्या है, पीएम, इसके एम्पलीट्यूड में वेरिएशन हो रहा है ना, जहाँ पॉजिटिव हाफ साइकिल है वहाँ एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, जहाँ नेगेटिव हाफ साइकिल है वहाँ एम्पलीट्यूड रिड्यूस हुआ। तो नेक्स्ट अपन ने पीएम डीमॉड्यूलेटर में दिया, लो पास फिल्टर से पास करा, आउटपुट क्या आ गया, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो ये इस तरह से इसकी फॉर्मेशन आएगी। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट थर्ड वन इज द पीपीएम, पल्स पोजिशन मॉड्यूलेटर। थर्ड वन इज द पीपीएम, पल्स पोजिशन मॉड्यूलेशन। अब इसकी स्टडी करें पल्स पोजिशन मॉड्यूलेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट में क्या है, बेसबैंड सिग्नल, ये एनालॉग सिग्नल है। फर्स्ट स्टडी में अपन देखे हैं, तो फर्स्ट वाला जो डायग्राम है वो कौन सा है, ये वाला एनालॉग सिग्नल और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और बेसबैंड सिग्नल। ठीक है। नेक्स्ट अपन ने क्या ली, पीरियोडिक पल्स ट्रेन ली, ये पल्स ट्रेन ले ली, पीरियोडिक पल्स ट्रेन, नॉट इम्पल्स, दैट इज द पल्स ट्रेन, पल्स अपन ने क्रिएट कर ली। नेक्स्ट अपन ने क्या क्रिएट करा, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। ये जैसे पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो पल्स का विड्थ इंक्रीज हो गया, ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में। नेगेटिव हाफ साइकिल के केस में क्या हो गया, रिड्यूस, विड्थ क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो ये एक्चुअली क्या है, पीडब्ल्यूएम। ये वाला कौन सा है, पीडीएम को क्या बोलते हैं, पीडब्ल्यूएम, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन और पल्स ड्यूरेशन मॉड्यूलेशन, ये ड्यूरेशन है। और इसके रेस्पेक्ट अपन ने क्या क्रिएट करा, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन में जहां ये पल्स एंड हो रही है वहां पे अपन ने एक पल्स क्रिएट कर दी, ये पोजीशन क्रिएट कर दी। नेक्स्ट ये वाली पोजीशन क्रिएट कर दी, नेक्स्ट ये वाली पोजीशन क्रिएट कर दी, नेक्स्ट ये वाली पोजीशन क्रिएट। तो दीज आर नोन एज द पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। How we can generate the PPM? So circuit, this one circuit will represent the how we can generate the pulse position modulated signal. First of all, using the IC555 timer. IC555 timer actually क्या है, वही जो अपन PWM में क्रिएट करते हैं। PWM पल्स को क्रिएट करने के लिए, PWM पल्स में अपन कैसे क्रिएट करते हैं, बाय यूजिंग मल्टी वाइब्रेटर। तो मल्टी वाइब्रेटर को आईसी की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, IC555 टाइमर आईसी, दिस वन IC555 टाइमर आईसी। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टू यूजिंग द डायोड D1। एक्स्ट्रा कंपोनेंट क्या है, यहाँ पे एक डायोड D1 कनेक्ट करा है, डायोड D1 और रेजिस्टर R1। ये वाला सेक्शन क्रिएट करेंगे, ये वाले सेक्शन से जैसे ही क्रिएट करेंगे तो आउटपुट में क्या क्रिएट होकर आ जाएगा अपने पास, पीपीएम। तो अल्टीमेटली क्या है इसका लॉजिक कि पीडब्ल्यूएम वेवफॉर्म, पहले आप पीडब्ल्यूएम वेवफॉर्म जनरेट करोगे, पीडब्ल्यूएम वेवफॉर्म जनरेट करने के बाद अपन डायोड और रेजिस्टर का एक कंपोनेंट, अपन रेजिस्टर, डायोड, रेजिस्टर और कैपेसिटर, ये वाला कैपेसिटर, इस सर्किट को अपन काम में लेंगे और सर्किट को काम में लेके अपन एक्चुअली क्या जनरेट कर देंगे, पीपीएम, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन सिग्नल अपन इजीली
जनरेट कर सकते हैं। सर्किट डायग्राम से देखें अपन इसको। इनपुट में क्या है, सबसे पहले जैसे मैंने अभी कहा कि पीडब्ल्यूएम वेवफॉर्म पहले सबसे पहले जनरेट करेंगे। पीडब्ल्यूएम वेवफॉर्म कौन सी सर्किट जनरेट करेगा, आईसी 555 टाइमर जनरेट कर दी। पीडब्ल्यूएम वेवफॉर्म जनरेट कर दी। ट्रिगर पल्स ले ली। ट्रिगर पल्स के रेस्पेक्ट अपन ने ट्रिगर कहाँ कर रहे हैं, जैसे इस वाले पल्स में देखें तो इस वाले एंड पर जहाँ पल्स एंड हो रही है वहां से अपन ट्रिगर पल्स जनरेट कर दिया। ये सेकंड वाली पल्स जहाँ एंड हुई वहां से अपन ने ट्रिगर पल्स जनरेट कर दी। यहाँ से ये एंड हुई तो यहाँ ट्रिगर पल्स जनरेट कर दी। तो दीज आर नोन एज द पल्स पोजिशन मॉड्यूलेशन। ओके, नेक्स्ट इज द डिमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट वन सेक्शन इज द डिमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर के बाद क्या आएगा, डिमॉड्यूलेटर। डिमॉड्यूलेटर के लिए क्या है, इनपुट पीएम वेवफॉर्म। इनपुट लिया अपन ने पीएम वेवफॉर्म, कहाँ पे सबसे पहले ट्रांसफर करा, फ्लिप फ्लॉप में ट्रांसमिट करेंगे। पीडब्ल्यूएम वेवफॉर्म जनरेट करेंगे। पीडब्ल्यूएम डिमॉड्यूलेटर लगा देंगे अभी जो अपन ने स्टडी करा है। और आप पीडब्ल्यूएम डिमॉड्यूलेटर के बाद आउटपुट क्या आ जाएगा, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, रिकवर्ड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। जैसे इस वाले सेक्शन में देखें अपन, सबसे पहले क्या है, ये पीएम वेवफॉर्म। जैसे ये पीएम वेवफॉर्म है, ये पीएम वेवफॉर्म अपन ने कहा ली सबसे पहले इधर वाले सेक्शन, ये पीएम वेवफॉर्म। पल्स पोजीशन मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म, ये एक पल्स, ये सेकंड पल्स, ये थर्ड पल्स और ये फोर्थ पल्स। ठीक है, पल्स पोजीशन। नेक्स्ट अपन ने क्या, किससे कंपेयर कर रहे हैं इसको, रेफरेंस पल्स जनरेटर से। किससे कंपेयर कर रहे हैं दोनों को, फ्लिप फ्लॉप के जो इनपुट दे रहे हैं, एक पे आर पे दिया हुआ, एक एस पे दिया। तो दूसरा सेक्शन क्या है, रेफरेंस पल्स जनरेटर, ये ट्रिगर पल्स या रेफरेंस पल्स जनरेटर, ये रेफरेंस पल्स जनरेटर, ये रेफरेंस पल्स जनरेटर। ठीक है, तो इसके रेस्पेक्टिव रेफरेंस पल्स का कैसे है, ये वाली रेफरेंस पल्स है सेकंड। और इन दोनों के बीच में अगर रेफरेंस पल्स को कंपैरिजन करें फ्लिप फ्लॉप के रेस्पेक्टिव, तो कौन सी पल्स क्रिएट हो जाएगी, ये वाली सेकंड वाली पल्स क्रिएट होगी। नेक्स्ट थर्ड वाले के लिए ये वाली क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट फोर्थ के लिए ये वाली क्रिएट हो जाएगी। तो एक्चुअली ये चीज क्या है, जैसे यहाँ विड्थ कम है, यहाँ विड्थ इंक्रीज हुई, फिर विड्थ कम हुई, फिर विड्थ कम हुई, तो ये एक्चुअली क्या है, पीडब्ल्यूएम पल्स है। ये एक्चुअली क्या है, पीडब्ल्यूएम के विड्थ में वेरिएशन आ रहा है। विड्थ में वेरिएशन है, विड्थ पहले इंक्रीज हो रही है फिर डिक्रीज हो रही है, तो दैट आर नोन एज द पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म। और इस पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर वेवफॉर्म को किसमें दे दो आप, डिमॉड्यूलेटर सेक्शन में, जो अपन ने स्टडी करा है। तो आउटपुट क्या आ जाएगा, रिकवर्ड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है, नेक्स्ट है कंपैरिजन। कंपैरिजन बिटवीन द थ्री मॉड्यूलेशन टेक्निक। Comparison between the PAM, PWM and PPM. PAM, PWM, PPM. PAM में ये वाले वेवफॉर्म आएगी जिसमें एम्पलीट्यूड में वेरिएशन है। इस वाले जैसे डायग्राम में देखो आप, तो यहाँ इसके एम्पलीट्यूड में वेरिएशन, ये एम्पलीट्यूड हायर है, ये लोअर हुआ, फिर ये लोअर हुआ, फिर ये लोअर। तो एम्पलीट्यूड में वेरिएशन, दैट्स नोन एज द PAM। विड्थ में वेरिएशन हुआ, जैसे विड्थ इसकी हाईएस्ट विड्थ ये है, फिर ये कम हुई है, फिर कम हुई है, फिर कम होती गई, तो ये विड्थ में वेरिएशन है, तो PWM हो जाएगा। पोजीशन में कैसे आएगा कि ये विड्थ के रेस्पेक्टिव पोजीशन आइडेंटिफाई करिए, पहली पोजीशन, ये दूसरी पोजीशन, ये तीसरी पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन, तो दैट्स आर नोन एज द PPM, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। PAM सिग्नल में क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ पल्स इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। दैट मींस एम्पलीट्यूड ऑफ द पल्स इज चेंज एज अकॉर्डिंग टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के रेस्पेक्टिव एम्पलीट्यूड में वेरिएशन होगा तो PAM, विड्थ में वेरिएशन होगा तो PWM, और पोजीशन में वेरिएशन होगा तो PPM। नेक्स्ट, द बैंडविड्थ B of the transmission channel depends upon the width of the pulses. Bandwidth in case of PWM, bandwidth of transmitted channel depends on rise time of the pulses. Same आएगा PWM और PPM में। The instantaneous power of the transmitter varies, not constant. इस वाले केस में क्या होगा, ये वेरिएबल होगा। That's are the transmitted power is variable, not constant. Noise interference effect is high in system of complex. Noise interference effect is high, system is complex in case of PAM. ये comparison है PAM के केस में। PWM के केस में क्या रहेगा, noise interference effect is minimum. PPM में भी क्या होगा, minimum होगा। Similar in amplitude modulation, it is similar to the amplitude modulation के।
implement similar to the frequency modulation and phase modulation. इसका कंपैरिजन। ओके, तो ये वाला जो चैप्टर है दैट इज द कंपैरिजन बिटवीन द पीएएम, पीडब्ल्यूएम एंड पीपीएम। इन दोनों के कंपैरिजन का, इनका एनालिसिस है और इनका कंपैरिजन है। कंपैरिजन से इसको अपन स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है अब इसमें पीसीएम, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ठीक है। अभी तक इसमें कोई डाउट हो तो, कोई इश्यू हो तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, है ना। पीपीएम, पीएएम मतलब इसमें पीएएम, पीडब्ल्यूएम, पीपीएम में कोई डाउट या कोई इश्यू हो तो वो अभी आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हो। कोई चीज या कोई इश्यू नहीं आ रहा हो समझ में तो वो मुझसे आप डिस्कशन कर सकते हो। बाकी चलो अपन आज यहीं पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन पीसीएम और डीपीसीएम स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में कोई इश्यू, कोई डाउट हो तो वो आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है। चलो मैं अटेंडेंस लेता हूं अभी। अक्षय, यस सर। अक्षिता, प्रेजेंट सर। अंजलि, प्रेजेंट सर। अनुज, प्रेजेंट सर। आयुष, प्रेजेंट सर। हेतल, प्रेजेंट सर। मयंक, प्राची, प्रेजेंट सर। रोशनी, प्रेजेंट सर। सौरभ, प्रेजेंट सर। वगीशा, प्रेजेंट सर। याशी, प्रेजेंट सर। ठीक है ना बेटा। तो इसको पढ़ो, मैंने नोट्स ऑलरेडी गूगल क्लासरूम पे मैं अभी डाल दूंगा आपके, इसकी पीपीटी की स्टडी करो। यूट्यूब पे मैं इसका ये आज का जो लेक्चर है इसकी वीडियो इसको अपलोड कर दूंगा, इसको पढ़ो, है ना। और नेक्स्ट लेक्चर का लिंक भी मैं आपको उस मीटिंग पे डाल दूंगा, ठीक है। और कोई इशू, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।